नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी आप सभी का आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे यहाँ विक्टोरियस स्टोरीज ऑफ आयुर्वेदा सेशन वैद्य शिल्पा एरमे जी द्वारा चलाया जा रहा है। आज आज इसी में हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत सर्राफ जी जुड़ते हैं, जो आपको बताएंगे कि मौलिक सिद्धांत की क्या उपयोगिता है और मौलिक सिद्धांत किस प्रकार से आपकी अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज करने में किस प्रकार से मददगार हो सकता है। मैं अनुरोध करता हूं प्रोफेसर शिल्पा एरमे जी को कि आज के हमारे स्पीकर का परिचय देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। थैंक यू सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं वैद्य शिल्पा एरमे सोलापुर महाराष्ट्र से विक्टोरिया स्टोरीज ऑफ आयुर्वेदा इस सेशन में आज की हमारी ये 5th कड़ी है, 5वां हमारा सेशन है। और हमारे साथ है हमारे सहयोगी डॉक्टर वंदना पाठक लखनऊ से, डॉक्टर नवीन जोशी सर, डॉक्टर अभिजीत सराफ सर नासिक महाराष्ट्र से, जो कि एकदम यंग जनरेशन के प्रतिनिधि है। और यंग जनरेशन के प्रतिनिधि होते हुए भी इन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की है। सही सा सिद्धांत चरक निरूपण ये इनकी स्पेशलिटी है। इस सेशन का प्रारंभ करने से पहले मैं धन्वंतरी वंदना यहाँ पे प्रस्तुत करती हूँ। आप कर रहे हैं मैम? सर कर दीजिए, फिर मैं ठीक है, कर दीजिए।
Ma'am, you are muted. So thank you, Dr. Joshi sir. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर वंदना पाठक मैडम से अनुरोध करती हूँ डॉक्टर अभिजीत सराफ सर का परिचय दे। Welcome Dr. Abhijit Prakash Saraf sir on this forum of Ayush Darpan, which is disseminating knowledge to PG students, UG students, normal people who are really interested to know about Ayurveda, and there are viewers who are attending the sessions from India as well as from foreign countries. At present, I'll be giving you have got a very big resume and there's a lot more to know about you, but for the convenience of the viewers and keeping time in consideration, I'll be giving a short introduction of Dr. Abhijit Prakash Saraf, who is taking the topic Ayurved ke Prastapikaran mein Sahinta Siddhant ki Upadeta, and this platform welcomes you. Dr. Saraf has done his BMS in 2005 from SS Ayurveda Mahavidyalaya, Hadaspar, Pune. He has done his MD in Samhita in 210 from BSDT Ayurved Mahavidyalaya, Bagoli, under guidance of his guru, Dr. SP Sar Deshmukh. He attained gold medal in PhD under the guidance of the same guru. And the topic of his MD was study of Jangam Dravya in Brutreyi and Lagutreyi. His thesis, in which he attained gold medal, was critical comparative study of commentaries on Charak Samhita Viman Sthan. He did his postgraduate diploma in psychological counseling from Institute of Behavioral Management Sciences, Chittor, Andhra Pradesh. He did his MS in psychological counseling in 2017 from SRAIM Institute, and the topic of his thesis was study of impact of counseling in Ayurvedic treatment. He has so many designations in different Ayurvedic colleges, and he has served as lecturer from 2010 to 2017 in SSAMN Hospital, Nashik, and he was reader from 28th May till 2010. And now we are proud to say that he is professor in SSAMH Nashik, and he is himself a PG guide to many students. There are list of students who are taking guidance from him, and he is founder and president of Agastya Foundation Nashik. He is co-secretary of Anant Ayurvedic Pratishthan. He is trustee to many sabhas. He is member of editorial boards of Ayurved Patrika Nashik, and he's in drafting committee of syllabus of CCIM. He's peer reviewer in Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, peer reviewer of Journal of Sanskrit Sahinta Siddhant, and at present there are so many things to be told about him. At present he's practicing Ayurveda and Panchakaram in Nashik and Pune. He's also running several courses and taking e-lectures, and there are so many symposiums and Shastra Vivechan he has been conducting. So welcome to you, Dr. Abhijit Saraf. I think I could take a lot of your, introduction. Jitna le sakte the. Welcome to the forum, and we are waiting for a nice lecture from you. Thank you very much. Thank you, Vandana madam. So Abhijit sir, please continue. Without wasting time, please continue. आयुर्वेद के प्रस्थापीकरण में संहिता सिद्धांत की उपादेयता. नमस्ते. ब्रह्मदक्षाश्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेशचरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः. आयुष दर्पण में ये मेरा द्वितीय व्याख्यान है. और बहुत ही अच्छा रिस्पांस उस समय भी मिला था, और आज भी बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है. आपने मेरा इंट्रोडक्शन इतना किया, उसके लिए मैं धन्यवाद आपको करता हूँ. पर मैं एक सामान्य आयुर्वेद का और चरक का विद्यार्थी हूँ, यही मेरी पहचान है. बाकी मुझे कुछ आता नहीं है. जो चरक ने कहा है, जो सुश्रुत ने कहा है,
जो वाग्भट ने कहा है बस वही मैं दोहराता हूँ, बाकी मेरे बुद्धि का तो उसमें कुछ नहीं है। फिर भी आपने मेरा इतना इंट्रोडक्शन कर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो व्याख्यान है इसमें हम 3 स्तर पे या 3 विषयों का विचार करने वाले हैं। सबसे पहले आयुर्वेद के प्रस्थापीकरण में संहिता और सिद्धांत की उपादेयता क्या है, इसके बारे में मैं कुछ मुझे जितना आता है उसके अनुसार मैं बताऊंगा। और दूसरा जो कि ये आयुर्वेद की यशोगाथाएं में ये सेशन हो रहा है, तो मेरा जो एक प्रवास या जर्नी मेरी जो हुई है एक विद्यार्थी से लेके आज एक अभ्यासक तक, मतलब विद्यार्थी ये शब्द अलग है और अभ्यासक ये शब्द अलग है। विद्यार्थी में विद्या चाहिए होती है और अभ्यासक में विद्या पूरी प्राप्त होने के बाद उसका बार बार अध्ययन करना पड़ता है। तो ये 2 अलग अलग भूमिकाएं हैं। तो मेरा जो प्रवास हुआ है एक विद्यार्थी से लेके एक अभ्यासक तक जो हुआ है, और जो चिकित्सक जिस पद्धति से मैं बना हूं उसके बारे में, और मेरे जो संहिता निरूपण है जो मेरे गुरुवर्य वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी के साथ में आज तक संपन्न है, आगे भी चलते रहेंगे, उसके बारे में, उस प्रवास, उस जर्नी के बारे में भी मैं आपके साथ मेरे जो मंतव्य रखूंगा। और तीसरा जो पार्ट होगा वो है कि आज के दौर में, मतलब अभी जो सामाजिक परिस्थिति है, जो हमारे सामने कई प्रकार के बड़े बड़े सवाल, हमारे प्रश्न हमारे सामने हैं, उसमें हम आयुर्वेद की तरफ से और आयुर्वेद की संहिता की तरफ से क्या क्या उसका योगदान कर सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। थोड़ा विषय विस्तृत है, मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला जो विषय है कि आयुर्वेद के प्रस्थापीकरण में संहिता और सिद्धांत की उपादेयता क्या है। मूल मुद्दा यह है कि आयुर्वेद का प्रस्थापीकरण करना मतलब क्या है, क्योंकि आयुर्वेद ये क्या है, तो आयुर्वेद ये एक सिर्फ मेडिसिनल साइंस नहीं है, केवल मेडिसिनल साइंस नहीं है। आयुर्वेद ये एक प्रकार का वेद है, उपवेद जिसको कहते हैं, और वेद का अर्थ जानना या ज्ञान करना ऐसा है। तो आयु का ज्ञान जिसमें होता है, तो आयु से रिलेटेड, मतलब हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, उसमें जो जो विषयों का हमारे जीवन से संबंध आता है, उन सभी का संबंध आयुर्वेद के जरिए से हम उसका ज्ञान कर सकते हैं। यह आयुर्वेद है, आयु को जानना है, और सिर्फ आयु को जानना नहीं है, तो आयु से निगड़ित जितने सारे विषय है उनको शास्त्रोक्त पद्धति से जानना, यह आयुर्वेद है। केवल मेडिसिनल यूज, ये मतलब द्रव्य कल्प, कौन से व्याधि में कौन सा कल्प देना है, कौन से व्याधि में कौन सी वनस्पति का यूज करना है, कौन सी अवस्था में कौन सा शोधन पंचकर्म करना है, ये उसके एक अंग है। बाकी जो आयुर्वेद का विस्तार है वो हम ध्यान में हमारे आता ही नहीं है। अगर आप चरक संहिता या सुश्रुत संहिता समुचित पढ़ेंगे तो उसका जो विस्तार है हमारे आंखों के सामने रहेगा। जैसे उन्होंने अगर आपको आयुर्वेद का विस्तार संक्षेप में जानना है तो चरक संहिता का शारीर स्थान पढ़ना चाहिए। पहले 5 अध्याय में उन्होंने सूक्ष्मता से स्थूलता तक, मतलब सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म जो वस्तु है कि पुरुष मतलब क्या, पुरुष के उत्पत्ति के घटक क्या है, सृष्टि के उत्पत्ति के घटक क्या है, उससे लेके मनुष्य के जन्म के बाद मनुष्य के चतुर्विध पुरुषार्थ में से अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष, उसको प्राप्त करने के उपाय भी चरक संहिता में बताए हैं। और इनके साधन से हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि शास्त्रज्ञ थे, हमारे प्राचीन जो व्यक्ति थे उस समय के सारे, मतलब कहीं पे भी जाति भेद, लिंग भेद हमारे प्राचीन वैदिक संस्कृति में नहीं था। मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ, अर्वाचीन काल की बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय में, क्योंकि हमारे चरक संहिता में और उसके चक्रपाणी की टीका में इसके कहीं भी संदर्भ मिलते नहीं है। ऐसा एक भी संदर्भ नहीं है कि स्त्रियों को मत पढ़ाइए, ऐसा संदर्भ नहीं मिलता है। उल्टा कई स्त्रियों ने आयुर्वेद सीखा था, चिकित्सा की थी, इसके रेफरेंस है। आप पार्वती के नाम से तो कल्प भी है, प्रताप लंकेश्वर नाम का जो कल्प कई सारे विद्वान वैद्य अपने प्रैक्टिस में उसको उपयोग में लाते हैं, वो प्रताप लंकेश्वर नाम का कल्प ये पार्वती ने बनाया है। ऐसे इस प्रकार से कई कल्प पार्वती जी के नाम पे भी है। बहुघाती योगिनी नाम की एक बहुत बड़ी वैद्या उस समय में थी।
और कई ऐसे विद्वान स्त्रियों ने भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस और उसका संवर्धन उस समय में किया है, इसके संदर्भ प्राप्त होते हैं। पर आगे के काल में जब हमारे ऊपर आक्रमण शुरू हो गया, तब धीरे धीरे ये थोड़ा सा उसको सिक्योर रखने के लिए फिर उसको थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ गए, ऐसा मुझे लगता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, पर जो प्राचीन काल का मतलब कृत युग में, सत्य युग में और त्रेता युग में जो हमारा भारतवर्ष था, उसमें इस प्रकार के कोई रेस्ट्रिक्शंस किसी प्रकार के नहीं थे। क्योंकि आयुर्वेद की उत्पत्ति कब हुई है, इसका संदर्भ ही चरक संहिता में 2 जगह है कि कृत युग के अंतिम काल में व्याधि की प्रथम उत्पत्ति हुई है। जनपदोध्वंस में ये वर्णन है। जनपदोध्वंस का अध्याय जो है, उसमें जनपदोध्वंस का वर्णन करने के बाद व्याधि की प्राग उत्पत्ति का वर्णन आया है। मतलब सबसे पहली व्याधि की उत्पत्ति कब होती है, इसका वर्णन आया है। और उसमें उन्होंने कृतयुग के अंतिम समय में ये व्याधि निर्माण होने शुरू हो गए, और फिर उसका निराकरण क्या करना चाहिए, इसके लिए फिर सारे उस समय के बड़े बड़े विद्वान शास्त्रज्ञ इकट्ठा हुए। उनके नाम भी चरक संहिता के प्रथम अध्याय में दिए हैं। अंगिरा, जमदग्नि इत्यादि सूत्र आगे दिया है। 8 नंबर से आगे के सूत्र में उनके नाम है। ये इकट्ठा हुए हिमालय में किसी एक जगह पे, और फिर उन्होंने परस्पर संभाषण करके इसका उपाय किसके पास है, इसके उन्होंने खोज की। तो इंद्र के पास इसका उपाय था, ऐसा पता चला। फिर आगे का आयुर्वेद अवतरण आपको सबको पता है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे ये कहना है कि आयुर्वेद इतने समय से है। आयुर्वेद एक कुछ 4000-5000 साल का इतिहास नहीं है। 4000 और 5000 साल तो सिर्फ कलयुग को हुए हैं। कलयुग जब कब शुरू हुआ, जब कृष्ण का देहांत हो गया। कृष्ण अवतारी पुरुष था, एक अवतार खत्म होते समय दूसरा युग शुरू होता है, ऐसा नियम है। जैसे राम का अवतार खत्म हुआ और फिर द्वापर युग शुरू हुआ था, वैसे कृष्ण का अवतार खत्म हुआ और फिर आगे उसी समय में कली ने प्रवेश किया। कृष्ण जब देह में थे तब कली राह देखता रहा था कि इनका ये कब देह का त्याग करेंगे, फिर मैं प्रवेश करूंगा। तो कृष्ण का जब देहांत हुआ, उसके ठीक 36 ईयर्स पहले, इसके सारे संदर्भ महाभारत में आपको मिलेंगे। कृष्ण के मृत्यु से पहले 36 ईयर पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, और वो युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर अपने सिंहासन पे बैठा था, उन्होंने राजकाज संभाला था। और जब वो युधिष्ठिर सिंहासन पे मतलब राजा हुए, तो उन्होंने अपना शक शुरू किया था। और आज युधिष्ठिर का शक जो है वो 5635 साल का है, उसमें से 36 साल कम कर दीजिए, तो अराउंड 5000 साल युधिष्ठिर को राज्य पे बैठ के हो गए, मतलब कलयुग को शुरू होके हो गए। इसके पहले द्वापर युग, अब कलयुग की जो मर्यादा है वो 4 लाख साल की है, कम से कम 4,32,000 ऐसे कुछ वर्ष है, उसमें से सिर्फ 5000 साल हुए हैं। उससे पहले द्वापर युग था। द्वापर युग ये दुगना है कलयुग से, मतलब 8 लाख साल है। और उससे पहले त्रेता युग था, वो द्वापर से दुगना है, मतलब 16 लाख वर्ष। और उसके पहले सत्ययुग है, कृतयुग है। और कृतयुग के अंतिम समय में व्याधि की प्राग उत्पत्ति हुई और आयुर्वेद का अवतरण हुआ। हम समझे चलो त्रेता युग के शुरुआत में आयुर्वेद का अवतरण हुआ, तो त्रेता युग के 16 साल, फिर द्वापर युग के त्रेता युग के 16 लाख साल, 16 लाख वर्ष, फिर द्वापर युग के 8 लाख वर्ष, और अभी आगे कलयुग के 5000 साल। इतना आयुर्वेद है। ये सिर्फ 5000 साल की या ऐसी छोटी सी अवधि नहीं है आयुर्वेद शास्त्र की। ये संहिताएं लिखी गई है वो महाभारत काल में लिखी गई है, क्योंकि अग्निवेश जो थे वो हमारे आचार्य द्रोण के गुरु थे धनुर्वेद के, तो उनके समय में प्रथमतः ये संहिताकरण इसका हो गया। पर इसके पहले पीढ़ियों से ये प्रैक्टिस चली आ रही थी। मुखोद्गत था, इसको वेद का स्वरूप था। अथर्ववेद में 4 प्रकार की चिकित्सा है, अथर्वणी, अंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा। इनका प्रचार होता था। अथर्व और अंगिरा ये 2 ऋषि थे, ये इसके प्रवर्तक थे, और इनसे आगे बहुत बड़ी चिकित्सा परंपरा चली है। इसका संदर्भ हमें मिलते हैं। इसके ऊपर कुछ पोस्ट मैंने फेसबुक पे भी किए थे, जो आपने शायद पढ़े होंगे। तो आयुर्वेद का इतिहास ये सिर्फ 5000 साल का नहीं है, ये कम से कम 32 लाख ईयर का कम से कम है। और ये चरक में इसके संदर्भ है कि कृतयुग के अंतिम समय में ये प्रथम संभाषा हुई थी और आयुर्वेद का अवतरण हुआ था। प्रथम अध्याय में ही है, आप खोल के देखिए।
और जनपदोध्वंस के विमान स्थान के अध्याय में है। तो हम जिसको समझते हैं कि हम आयुर्वेद का कुछ प्रस्थापीकरण कर सकते हैं, तो यह हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आयुर्वेद का प्रस्थापीकरण करने में हम कोई नहीं, हम बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत सामान्य लोग हैं। आयुर्वेद हमारा प्रस्थापीकरण करता है। पर ये जो विषय है कि आयुर्वेद का प्रस्थापीकरण आज के समय में कैसे करना है, ये महत्व का विषय है, क्योंकि इतने सारे बड़े 30 to 35 लाख ईयर में कई उतार चढ़ाव आ गए, अनेक लोगों ने आक्रमण किया, कई संहिताएं नष्ट हो गई, कई संहिताएं नई निर्माण हो गई, फिर भी ये आयुर्वेद की अक्षुण्ण परंपरा चलती आ रही है। और मेरा ये विश्वास है कि अगले और 35 लाख साल तक ये आयुर्वेद अक्षुण्ण पद्धति से ऐसे ही चलता रहेगा। हम इतने बड़े लाइफ स्पैन में जो पढ़ा, ये इतना टाइम स्पैन है, इसमें से हमारी लाइफ 70-80 ईयर्स की एक बूंद भी नहीं है। और इसमें हम आयुर्वेद सीखते हैं आफ्टर 12 ईयर, मतलब अराउंड एज ऑफ 16, उसके बाद में प्रैक्टिस शुरू करते हैं और धीरे धीरे आयुर्वेद समझते हैं। तो बहुत 50-60 साल तो कुछ नहीं है एक व्यक्ति के, और एक व्यक्ति तो कोई आयुर्वेद का प्रस्थापीकरण नहीं कर सकता। पर अगर जैसे प्राचीन काल में हमारी परंपरा थी कि हमारे पास जो है वो वैसे के वैसा या उसमें और थोड़ा सा इनपुट्स देके अगले पीढ़ी तक हम पहुंचा पाते हैं, तो ये परंपरा चलती जाती है और ये अक्षुण्ण रहती है। शास्त्र शाश्वत है, शास्त्र ये अमर अजर है, व्यक्ति कोई भी अजर अमर नहीं है। मैंने अभी मैडम से कहा, हमारी बात हुई थी कि मेरा इतना इंट्रोडक्शन मत दीजिए, 100 साल के बाद कौन अभिजीत सराफ था किसको पता होगा, किसी को पता नहीं होगा। मेरे पोते, मेरे पर पोते जो होंगे उनको पता भी नहीं होगा कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कैसे पढ़ाई की। मेरे पिताजी, दादाजी, मेरे पर दादाजी, उनके पिताजी ने क्या किया, मुझे आज कुछ भी पता नहीं है। तो व्यक्ति महत्व का नहीं है, संस्था महत्व की नहीं है, शास्त्र महत्व का है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए आज के अनुरोध में, आज के सामाजिक परिस्थिति में आयुर्वेद का प्रस्थापीकरण करना, इसका अर्थ क्या है? एक सबसे पहले दिमाग से निकाल देना चाहिए कि आयुर्वेद का ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए। यह बहुत बड़ी भूल है हमारी। आयुर्वेद का ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इट्स ऑलरेडी ग्लोबलाइज्ड। हाँ, करना क्या है, तो आयुर्वेद मतलब सिर्फ मेडिसिन नहीं है, आयुर्वेद मतलब सिर्फ हर्बल ड्रग्स नहीं है, आयुर्वेद एक वृद्ध वैद्य परंपरा नहीं है। आयुर्वेद ये शास्त्र है, इट्स अ वेल एस्टैब्लिश, वेल एविडेंस बेस्ड साइंस। ये पूरे वर्ष में, पूरे दुनिया में जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए हमें संहिता की क्या जरूरत है, ये पहला प्रस्थापीकरण होगा कि पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद ये एविडेंस बेस्ड साइंस है। आज कोई भी उठता है जिसको आयुर्वेद का अ भी पता नहीं है, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति उठता है, कहता है कि आयुर्वेद ये एक फेक साइंस है, इट्स अ क्वैक साइंस। कौन होते हैं ये लोग? इनको हमें उत्तर देने की जरूरत होती है, और वो उत्तर सशास्त्र देना पड़ता है, ससंदर्भ देने पड़ते हैं, और उसके लिए हमें संहिताओं का आधार लेना पड़ता है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि हमारे जो बीएमएस के बच्चे रहते हैं, या जो बीएमएस लेवल तक है, जिसमें मैं भी था कभी बीएमएस लेवल तक, तो हमें लगता था कि यार चरक संहिता ये विषय कितना बोरिंग है, क्या है उसमें, कि कई सारे हमारे मित्र तो सिर्फ अनुक्रमणिका पढ़ के पास हुए हैं। मतलब कौन से अध्याय में क्या विषय है इतना ध्यान में रखो, बाकी अपने आप लिख देते थे, जो भी प्रश्न आए उत्तर एक ही लिखना है। पासिंग इट्स नॉट डिफिकल्ट इन आयुर्वेदा, नॉलेज इट्स वेरी डिफिकल्ट, और उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो मैं बता रहा था कि जब बीएमएस लेवल पे थे तो हम कहते थे ये चरक संहिता कितना बोरिंग विषय है, इसमें क्या आगे क्या करना चाहिए। पर ये नहीं भूलना चाहिए कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट यही सबके बेस हैं। आज जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, जितने सारे बड़े बड़े एम क्लेम करते हैं कि मैं कैड ठीक करता हूं, मैं आर्थराइटिस ठीक करता हूं, मैं पार्किंसन ठीक करता हूं, मैं अलाना फलाना, ये सब जो करते हैं, इसके पीछे बेस किसका है? इसके पीछे बेस संहिता का है। और बिना संहिता के जो क्लेम करते हैं वो टिके नहीं रहते। तो संहिता में जो है, मैं एक सिर्फ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय में उन्होंने प्रथम चिकित्सा ऐसी बताई है रक्तपित्त की, कि आप अगर वो जो व्यक्ति है जिसको रक्तपित्त हो रहा है, वो ऊर्ध्व हो या अधोग हो, कोई भी रक्तपित्त हो, उसको अगर रक्तपित्त की अवस्था है तो उसको प्रथमतः उसकी उपेक्षा कर दीजिए, उसको स्तंभन मत कीजिए। नादौ स्तंभनम अर्हति,
और क्योंकि जो दुष्ट रक्त है वो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। अगर हमने स्तंभन किया तो कई प्रकार के व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं, रुद्र आदि व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं। और ये संदर्भ रक्तपित्त में है। इसका अर्थ उन्होंने रक्तपित्त के कई रुग्ण देखे होंगे कि जिनमें स्तंभन करने पर ये उपद्रव उत्पन्न हो गए, और जिनमें प्रथमता स्तंभन नहीं करने पर वो रुग्ण को उपद्रव कई प्रकार के व्यापद उत्पन्न नहीं हुए। पर वही चरक अगले आर्ष चिकित्सा अध्याय में कहते हैं, आर्ष चिकित्सा अध्याय का 136 नंबर का सूत्र है, आप बाद में देख लीजिए। वो कहते हैं कि अगर ग्रीष्म ऋतु है और पित्त प्रकोप का काल है, पित्त प्रकोपक हेतुओं से अगर रक्त बाहर जा रहा है तो उसको एकांतेन स्तंभयेत, उसको बाकी किसी का विचार न करते हुए उसकी प्रथमता स्तंभन चिकित्सा करनी चाहिए। अब ये एक प्रकार का रक्तपित्त ही है, पर वो अगर ग्रीष्म ऋतु में है और पित्त प्रधान है और पित्त प्रकोपक हेतुओं से है और रक्तस्राव हो रहा है, ऋतु भी पित्त का है, हेतु भी पित्त के है और लक्षण भी पित्त के है, तो आप उसको एकांत से स्तंभन कीजिए। ये अपवाद बताया, मतलब उन्होंने ये बिना रुग्ण देखे हुए ये किया होगा क्या प्राचीन संहिताकारों ने? संभव ही नहीं है। रुग्ण जो देखते हैं वही इसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद का प्रस्थापीकरण करने के लिए हमें दूसरी जरूरत है कि हमारी हर एक की प्रैक्टिस ये अत्यंत उत्तम होनी चाहिए और वो सशास्त्र होनी चाहिए। लोग कहते हैं मैं शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूं, कोई अशुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करता भाई, सभी शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं। ये शुद्ध और अशुद्ध आयुर्वेद ऐसे कोई चीज ही नहीं है, आयुर्वेद आयुर्वेद है। तो ऐसा मत कीजिए कि मैं शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस न कर, मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूं, ऐसा कहिए। तो हमारी प्रैक्टिस हर एक की आयुर्वेद के शास्त्रों सिद्धांतों से निगडित होनी चाहिए, और दूसरा उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। हमारे पास आए हुए हर एक केस का अच्छे प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन वो भी सॉफ्टवेयर में करना चाहिए, ना कि कागज पे। क्योंकि जब हमें कोई पूछेगा कि आपके पास एविडेंस क्या है, तो उनके मुंह पे मारने के लिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हमारे कई वैद्य बड़े बड़े क्रिटिकल केसेस ठीक करते हैं, पूरे भारतवर्ष में करते हैं। मैं नाम लेने बैठूंगा तो पूरा घंटा उसमें चला जाएगा, पूरा वक्त उसमें चला जाएगा। इतने सारे बड़े बड़े वैद्य, और अपने सारे वैद्य उनकी प्रैक्टिस में कई अच्छे प्रकार से चिकित्सा करते हैं, सभी लोग करते हैं। द्रव्य कोई भी इस्तेमाल करे, कोई भी किसी प्रकार का द्रव्य उपयोग में लाए, वो रुग्ण ठीक करते हैं। सिर्फ हम कमी कहाँ है, हम कम है डॉक्यूमेंटेशन में, कम है। इसलिए हमें हमारी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है या हॉस्पिटल की प्रैक्टिस है या किसी संस्था की प्रैक्टिस है, ओपीडी करते हैं, तो हर एक रुग्ण की हर एक लक्षण और उसको दिए हुए हर एक द्रव्य का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। और जब ये डॉक्यूमेंटेशन अगले 10 साल तक होगा तब हमारे पास पर्याप्त। और होता क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत महत्व का है। तीसरी चीज क्या है, जो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे वो एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। हमारी आयुर्वेद के फील्ड की सबसे बड़ी कमी यह है कि हम शेयरिंग नहीं करते हैं। मैं एक आपको स्लोगन बता दूं, मेरी छोटी बेटी हमेशा बोलती है कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयरिंग करना चाहिए, मेरे पास जो है वो सबको बताना चाहिए, बिना किसी चीज को छुपाए, बिना छुपाए बताना चाहिए ना, क्योंकि छुपाने से ही तो ह्रास हुआ है। बिल्कुल मत, क्योंकि हम ऊपर कुछ लेके जाने वाले नहीं है। ये शरीर के साथ आए थे, पर जाते समय हम शरीर भी यहां छोड़ के जाने वाले हैं। तो क्या जाएगा हमारे साथ? कुछ नहीं जाएगा। इसलिए जो समझा है वो सबको बांट दो, जो पता चला है वो बता दो, कल पर जो पता है वो सबको बता दो। आप बताओगे तो 100 में से 10 लोग उपयोग लाएंगे, उनको देख के और 10 लोग करेंगे, ऐसे चेन बढ़ती जाएगी और सारे लोग वो करने लगेंगे। इसलिए छुपाना ये बहुत बुरी चीज है। डॉक्यूमेंटेशन जो किया गया है वो शेयर करना चाहिए, उसको पब्लिकेशन में लाना, उसको पब्लिकेशन उसका करना चाहिए, किताबों में रखना चाहिए, वेबिनार्स में बताना चाहिए, या फिर उसके इंटरनेशनल आर्टिकल्स लगा देने चाहिए। हम डरते हैं, कई हमारे वैद्य डरते हैं कि मैं खुद डरता हूं कभी कभी कि मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है आर्टिकल की। तो जिसको पता है लैंग्वेज, उसकी हेल्प लेके वो पब्लिश करना चाहिए। आज हम सिर्फ, हमारे कई लोग ऐसे, हमारे जिंदगी में हम किसको प्राधान्य देते हैं? एक तो पैसे को देते हैं और दूसरा नाम को देते हैं। ये दो चीजें छोड़ दी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आयुर्वेद के प्रस्थापीकरण में संहिता का योगदान ये इस प्रकार से हो सकता है। हमारी प्रैक्टिस संहिता बेस होनी चाहिए, हमारे विचार संहिता बेस होने चाहिए,
और हमारी कृतियां संहिता बेस होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा महत्व है। और इसलिए मैं 2-3 उदाहरण आपको बताऊंगा कि चरक संहिता का क्या क्या उपयोग हो सकता है। मतलब चरक संहिता में कई सारे विषय, मतलब हमारे जीवन से निगडित सभी विषयों का उसमें वर्णन किया है। मतलब आप हैरान हो जाओगे कि मद्यपान का विधि चरक संहिता में है, मैथुन का विधि चरक संहिता में है, निद्रा का विधि चरक संहिता में है, दिनचर्या तो आप सभी को पता है, ऋतुचर्या आप सभी को पता है। इस प्रकार से हमारे जीवन से जितने विषय निगडित है, उसको एक भी विषय को बिना छोड़े उन्होंने उसका सभी का वर्णन किया है। आप आज के सभी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम जो मेडिकल फ्रैटर्निटी को आता है, आप सामने रखिए, उसका उत्तर आपको चरक में मिलेगा। ये मेरा अनुभव है और ये मेरा मतलब मैं आपको बताता हूं, अनुभव के साथ बताता हूं कि ये होता है, ये हमें मिलता है। कोई भी पेशेंट हो, हाँ उसका नाम नहीं मिलेगा, मतलब कोरोना, आपको कोरोना नाम से कुछ नहीं मिलेगा, पर उसको उसका विचार कैसे करना चाहिए, इसका उत्तर हमारे चरक में है। अब कोरोना का विषय निकला है तो मैं आपको बताता हूं कि चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 3 अध्याय में 12 नंबर के सूत्र में उन्होंने बताया है कि देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वरः समुपसेवते। हमारे जिसके शरीर में दोषों की विकृति नहीं है, उसको ज्वर बाधा नहीं करता है। यह ज्वर का अर्थ सूक्ष्म जंतु लेना चाहिए, ऐसा चक्रपाणी कहते हैं। भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशम दर्शयति, ऐसा उन्होंने टीका में लिखा है चक्रपाणी जी ने। मतलब आज जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उसी का तो वर्णन है कि वो वायरस शरीर में प्रवेश करेगा पर व्याधि नहीं होगा अगर दोष साम्यावस्था में है तो। और जिसके शरीर में दोषों की विकृति पहले से है, उसके शरीर में वायरस प्रवेश करने पर वो उसको व्याधित करेगा, उसको लक्षण दिखाई देगा आगंतुक ज्वर के। तो कोरोना में यही हुआ, कुछ लोग असिम्टोमेटिक थे, कुछ लोग सिम्टोमेटिक थे। क्यों हुआ ऐसे? जिनके शरीर में पहले से ही दोषों की विकृति बड़ी मात्रा में थी, उनको सिम्टम दिखे, और जिनके शरीर में दोषों की विकृति ज्यादा मात्रा में नहीं थी, वो माइल्ड सिम्टम में रहे। और जिनके शरीर में दोष साम्यावस्था में थे, उनको वायरस प्रवेश करने पर भी टेस्ट पॉजिटिव आई होगी, पर सिम्टम कुछ नहीं होंगे उनको। इसका उत्तर चरक में है। अब हम क्या करते हैं, हम मॉडर्न का कोरिलेशन आयुर्वेद से करने के लिए बैठते हैं। ये सबसे बड़ी आयुर्वेद के प्रस्थापीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा है ना, ये है कि डोंट कोरिलेट विथ एनी साइंस। एलोपैथी का अध्ययन आवश्यक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि एलोपैथी ये इसको बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़िए। उल्टा मैं कहता हूं कि जो हैरिसन पढ़ता है उसको चरक बहुत अच्छे समझ में आता है। गुजरात में जामनगर में डॉक्टर सीपी शुक्ला नाम के एक बहुत बड़े वैद्य थे, विद्वान थे, आप सभी को उनका नाम पता होगा। मैं उनसे मिला हूं वैयक्तिक रीत्या, उनसे मैंने बातचीत भी की है। वो चरक का एक सूत्र और उसका विवरण हैरिसन में ऐसा बताते थे। आज ऐसे अध्ययन करने वाले लोग हैं नहीं है, पर अगली पीढ़ी में होने चाहिए, उसका काम हमें करना है। अगली पीढ़ी गढ़ाना, पीढ़ी तैयार करना, यह हमारा काम है। यह भी आयुर्वेद के प्रस्थापीकरण में बहुत महत्व का है। इसलिए आयुर्वेद के प्रस्थापीकरण में संहिता का अगर हाथ छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करते बैठेंगे कि मेद मतलब फैट, मज्जा मतलब बोन मैरो, रस मतलब प्लाज्मा, रक्त मतलब ब्लड, तो हम आगे कुछ नहीं जा सकते हैं। रक्त रक्त की जगह रखिए और ब्लड ब्लड की जगह रखिए। डोंट कोरिलेट इट। प्राणव स्रोतस मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम, अन्नव स्रोतस मतलब जीआई ट्रैक, ये बंद कर दीजिए, ये कोरिलेशन आप बंद कर दीजिए। जब ये प्रथमतः कोरिलेशन शुरू हुआ, मैं उसका उत्तर भी आपको बताता हूं। ये पहला कोरिलेशन ये मॉडर्न और आयुर्वेद का ये श्रीमान गणनाथ सेन जी ने किया उनके अध्ययन में, क्योंकि गणनाथ सेन वॉज द फर्स्ट पर्सन जो आयुर्वेद के अध्ययन करने के बाद एलोपैथी के, मतलब आधुनिक विद्वान, कलकत्ता का जो मॉडर्न कॉलेज शुरू हुआ था, तो अंग्रेजों ने ये उनको उस समय में प्रस्ताव रखा कि जो आयुर्वेद के विद्वान है उनको एडमिशन दी और उनको आधुनिक शास्त्र सिखाया। और उन्होंने फिर दोनों साइंस सीखने के बाद उसका कोरिलेटिव स्टडी आगे रखने का प्रयास शुरू किया। तो उस समय जो आयुर्वेद के विद्वान थे बंगाल में, जैसे नाम बताता हूं मैं आपको, योगेंद्र नाथ सेन,
गंगा प्रसाद सेन, ज्योतिष चंद्र सरस्वती, हारान चंद्र चक्रवर्ती, ये सारे कविराज इनको कहते थे। इन्होंने इसको बहुत विरोध किया था। उसके संदर्भ प्राप्त होते हैं कि आप आयुर्वेद की जगह रखिए और एलोपैथी की जगह रखिए, डोंट को रिलेटेड। पर गणनाथ सेन जी ने उसको माना नहीं और फिर उन्होंने अपना ग्रंथ प्रत्यक्ष शारीरम ये लिखा। उसमें जो संहिता में पद नहीं है, मसल के, वेन के, नर्व के या टेंडोन के, उसको संस्कृत नाम दिए जो संहिता में नहीं है, और वो आगे परंपरा चलती आ गई और इससे आयुर्वेद दुष्ट हो गया, ऐसा मैं कहता हूं। अगर आयुर्वेद का प्रस्थापीकरण आयुर्वेद के जरिए से करना है तो आयुर्वेद का कार्य ये आयुर्वेद की परिभाषा में होना चाहिए। आज एक और बड़ा हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज के सारे जो रिसर्चर, सो कॉल्ड मॉडर्न रिसर्चर जो है, आयुर्वेद के भी रिसर्चर है, वो आयुर्वेद को मॉडर्न रिसर्च के टूल्स में बताने की प्रयास करते हैं। ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा। कितनी पीढ़ियां काम करो, कुछ नहीं होगा। आयुर्वेद का अगर आपको रिसर्च करना है तो वो आयुर्वेद के परिभाषा में, आयुर्वेद की पद्धति से करिए। मॉडर्न टूल से, मॉडर्न साइंस का रिसर्च करिए, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, पर मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न परिभाषा और उसको आयुर्वेद के द्रव्य और आयुर्वेद का सिद्धांत प्रस्तावित कर रहे हैं, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों के सिद्धांत में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इसलिए आयुर्वेद का रिसर्च करना है, एक तो रिसर्च मतलब फिर से ढूंढना, ये करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। पर अगर करना है तो संहिता को मत छोड़िए, संहिता का हाथ पकड़ रखिए। आपको जो चाहिए वो संहिता में मिलेगा। अब समय इतना नहीं है कि मैं कुछ आपको उसके उदाहरण देते बैठूं, कई सारे हैं। एक आपको रिसर्च का क्षेत्र बता देता हूं। चरक में विमान स्थान के 7वें अध्याय में कृमि की चिकित्सा का वर्णन किया है। कितने काम इसके ऊपर हुए हैं उस अध्याय में, जो वर्णन किया है कृमि चिकित्सा कि एक ही दिन उसको वमन दो, उसको बस्ती दो, उसको विरेचन दो, चिकित्सा बताई है। कितने लोगों ने काम किया? किसी ने काम नहीं किया है। उसमें द्रव्य गुण का काम करना है आपको। आज सारे द्रव्य गुण के एमडी के थीसिस ये मॉडर्न के पद्धति से होते हैं कि एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, उसकी फार्माकोडायनामिक क्या है, फार्माको क्यों करना है संहिता में। इससे हमारे प्रैक्टिस में क्या फर्क आने वाला है? इतने सारे द्रव्य गुण के थीसिस हो रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस में क्या फर्क हुआ? कुछ नहीं। उसका सामाजिक योगदान क्या है? कुछ नहीं। उसका शास्त्र में योगदान क्या है? कुछ नहीं। तो क्या हो रहा है? हम सिर्फ मॉडर्न फार्मेकोपिया है, उसमें हम सिर्फ कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। कितने भी सारे एमडी पीएचडी थीसिस करो। तो द्रव्य गुण में अगर काम करना है तो एक सब्जेक्ट में आपको बताता हूं कि उसी कृमि चिकित्सा में शैखरिक नाम का एक द्रव्य आया है, और शैखरिक का टीका चक्रपाणी ने बताया है। शैखरिक मतलब विडंग कषाय, विडंग। और बाकी सारे निघंटू, बाकी सारे संहिताकार, बाकी सारे टीकाकार शैखरिक को अपामार्ग कहते हैं। अब इसके ऊपर काम कौन करेगा कि शैखरिक पद से कौन सा द्रव्य लेना है, कि विडंग लेना है या अपामार्ग लेना है। चक्रपाणी विडंग कहते हैं, बाकी के लोग अपामार्ग कहते हैं। इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज संहिता में जो विषय है, लोग कहते चरक संहिता में रस औषधि रस भस्म का वर्णन नहीं है। आप रसायन अध्याय निकल के लोह अयस्कृति देख लीजिए, वो जो अयस्कृति का लोहादि रसायन जो वर्णन किया है, उसमें तो भस्म की प्रक्रिया वर्णन की है। उदर चिकित्सा अध्याय में, गुल्म चिकित्सा अध्याय में कई सारे सुवर्ण मक्षिकादि भस्मों का वर्णन आया है। तो चरक में रस भस्म का वर्णन नहीं है, ये मत कहिए, मूल वहां पे ही है। उसका जो विस्तार है वो आगे के लोगों ने किया है, नो डाउट। चरक में शल्य क्रिया नहीं है, क्यों नहीं है वर्णन किया है। शोध चिकित्सा अध्याय में देखिए, गुल्म चिकित्सा अध्याय में देखिए, उदर में देखिए, बताया है। और फिर उसका विस्तार सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में किया है। आज सुश्रुत कोई पढ़ता ही नहीं, सुश्रुत पढ़ेंगे ही नहीं तो शल्य क्रिया में क्या करें? आज सारे एमडी जो हमारे शल्य है वो सारे मॉडर्न टेक्निक से सर्जरी करते हैं। एक तो ऐसा कोई बंदा निकले ना कि जो हमारी पद्धति से प्रयास करे। अब मैं तो शल्य का नाता नहीं हूं, मेरी डिग्री तो एमडी संहिता है, पर मेरी ये इच्छा है कि इतने सारे एमडी शल्य में से एक व्यक्ति ऐसा है
कि जो कहेगा कि मैं मेरी आयुर्वेद की पद्धति से सर्जरी कर रहा हूं। मेरे प्रैक्टिस में मैं कई सारे व्रण की चिकित्सा करता हूं। मैं आयुर्वेद की चिकित्सा में त्रिफला मशी यूज करता हूं, जात्यादि घृत यूज करता हूं, दाड़ीमादि घृत यूज करता हूं, यष्टि मधु घृत यूज करता हूं, और अच्छे अच्छे रुग्ण ठीक हो जाते हैं। बड़े बड़े व्रण के पेशेंट हमने आयुर्वेद पद्धति से ठीक किए हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो आयुर्वेद का प्रस्थापिकरण करने के लिए हमें संहिता का समूल अध्ययन, उत्तम पद्धति से संहिता बेस्ड प्रैक्टिस और उसका डॉक्यूमेंटेशन और उस डॉक्यूमेंटेशन का पब्लिकेशन, ये सारे मार्ग आयुर्वेद के प्रस्थापिकरण के लिए संहिता के जरिए से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के व्याख्यान का प्रथम भाग हुआ। अब दूसरा जो भाग है वो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। जो आयुर्वेद की यशोगाथाएं नाम का ये जो सेशन शुरू है, उसमें मैं मेरी जो छोटी सी एक जर्नी हुई है मेरे गुरुजी के साथ में, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। मैम प्लीज मुझे अलाउड कीजिए। डॉक्टर शिल्पा यरमे मैम, प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। थैंक यू। तो संहिता निरूपण के जो मेरे स्वानुभव है मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, जस्ट मेक इट फुल स्क्रीन। या बना या फुल स्क्रीन बना है मैम? यस यस, इट्स विजिबल, कंटिन्यू। ओके ओके। तो संहिता निरूपण ये मेरे जो गुरुवर्य वैद्य आनंद धर्माधिकारी सर, ये डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद महाराष्ट्र स्टेट इस पोस्ट से रिटायर हुए, और वो काय चिकित्सा के एमडी और पीएचडी है, और काय चिकित्सा के प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में, चारों गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र में वो एज अ प्रोफेसर थे काय चिकित्सा के, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस उनकी महाविद्यालयों की रुग्णालयों में थी, और बड़ा अनुभव उन्होंने 40 साल में प्राप्त किया, और वो चरक हाथ में लेके पढ़ाते थे और रुग्णों को दिखाते थे। रिटायरमेंट के बाद हमें पता है कि रिटायरमेंट के बाद लोग एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, पर हमारे गुरुवर्य जो चरक धर्माधिकारी, जिनको हम आधुनिक चरक कहते हैं, उन्होंने चरक निरूपण का एक उपक्रम शुरू किया, और मेरे सौभाग्य से प्रथम चरक निरूपण से ही मैं उससे जुड़ा गया। ये क्या कहते हैं, मेरे कुछ पुण्य का कर्म होंगे, उसके कारण ये पॉसिबल हुआ। पहले निरूपण में मैं श्रोता की तरह उनके सामने बैठा था डोंबिवली में आयुर्वेद व्यासपीठ ने, और उसके जो उस समय के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वैद्य विनय वेलणकर, उन्होंने ये कार्यक्रम अरेंज किया था, और उसमें वक्ता सिर्फ धर्माधिकारी सर थे, और उनके दो पुराने विद्यार्थी वैद्य वेंकट धर्माधिकारी और वैद्य अतुल निरगुड़े, वो उस समय में सर को सहाय्य करने के लिए आए थे, और मैं एमडी कर रहा था, मैं विद्यार्थी था। उस कार्यक्रम से हम बहुत ही प्रभावित हुए, और हमने तय किया कि हम हमारे कॉलेज में ये चरक निरूपण का कार्यक्रम अरेंज करेंगे, और हमने हमारे प्रिंसिपल और मेरे जो गाइड थे वैद्य सर देशमुख सर जी, उनसे विनती की कि वैद्य धर्माधिकारी जी को हमारे कॉलेज में आप बुलाएंगे क्या, हमें उनका निरूपण अरेंज करना है। फिर हमारी इतनी व्याकुलता देख के उन्होंने वो पूरा प्रोग्राम अरेंज किया, और सबसे पहले उसमें मुझे सूत्रवाचक के स्वरूप में उस कार्यक्रम में सहभागी होने का मौका मिला। सर निरूपण करते थे और मैं उसका सूत्र वाचन करता था, मतलब जो सूत्र का निरूपण करना है उसको जो पढ़ना होता है वो मैं पढ़ता था। ऐसा पहला कार्यक्रम पुणे में हुआ 2008 साल, जनवरी 2008। अब बराबर 13 साल हो गए इसको। और इसके बाद धर्माधिकारी सर जी फिर रिटायर हुए थे, तो वो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर के तरह ज्वाइन हो गए। रिटायरमेंट के बाद भी 4-5 साल तक हम प्रोफेसर आप कहीं पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो वो हमारा भाग्य इतना था कि वो हमें ज्वाइन हो गए, और फिर हमारा रोज चरक का अध्ययन शुरू हो गया। धर्माधिकारी सर रोज दोपहर को 1 बजे से लेके 5 बजे तक हमें पढ़ाते थे, और मैं तो फिर उनके घर पे भी जाने लगा, उनका घर का एक मैं मेंबर भी हो गया, मतलब बेटे जैसा हो गया। और अभी तक ये हमारा कंटिन्यू है। मैं और सर आज भी रोज 1 घंटे बात करते हैं, फोन पे हम पढ़ाई करते हैं, जो नया पता चलता है हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर ये प्रयास शुरू हो गया, और धीरे धीरे निरूपण शुरू हो गए। आज 2008 से लेके आज 2021 का जनवरी महीना है, हमारे
148 मतलब 148 निरूपण सर के और मेरे मिलके और अलग अलग ऐसे सब मिलके 148 निरूपण आज तक संपन्न हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में हुए हैं। आप जो नाम लो, मतलब AIA, NIA, BHU, जामनगर, फिर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सब जगह पे, दिल्ली, ये सब निरूपण संपन्न हुए हैं। और हमने जो टैली किया है, कम से कम 10 से 15 हजार लोगों ने इसका अभी तक उसको निरूपण सुना है। और फिर उसमें से अभी हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें कम से कम 112 या 113 लोग ऐसे तैयार हुए हैं कि जो अपनी अपनी जगह पे अभी इसी पद्धति से निरूपण करते हैं, लेक्चर देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे निरूपण के फल हैं। अब मेरे जो अनुभव है मैं कुछ आपके सामने रखूंगा कि सबसे पहले आयुर्वेद के अध्ययन के लिए आध्यात्मिकता की बहुत जरूरत होती है। हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी विचारधारा को मानने वाले हो, हम जिसको मानते हैं, जिस धर्म के हैं, उसके अनुसार हमारा जो कुलधर्म कुलाचार होता है उसको करना चाहिए। वो बिना, अगर वो छोड़ दिया तो हमें कितनी भी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो, हमें समाधान और शास्त्र का जो एक अनुभव आना चाहिए वो नहीं आता है। इसलिए हमारा जो एक आयुर्वेद ये खुद पुनर्जन्म और ईश्वर मानने वाला है, कि एक शक्ति मानता है वो, कि एक शक्ति है वो जो हम सबको चलाती है, हमारा अस्तित्व हमारा यहाँ पे उसी के कारण है। तो अगर वो हम नहीं करेंगे, वो हम नहीं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, ईश्वर नहीं है या कोई ऐसी शक्ति नहीं है, तो मैं ये 100% कहता हूं कि आपको आयुर्वेद पूरा तरीके से कभी समझेगा नहीं। इसलिए आयुर्वेद के समझने के लिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आध्यात्मिकता की बहुत बहुत जरूरत है। ये मेरे जो पिक्चर है ये गिरनार के हैं, और हर साल हम गिरनार जाते हैं और कई विद्यार्थियों को हम लेके जाते हैं। वहां पे नीचे ही धन्वंतरी जी का देहोत्सर्ग, उसके भी फोटो में आगे दिखाने वाला हूं। ये अलग अनुभूति का विषय होता है। तो आप जिस धर्म जाति किसी पंथ के हो, जो आपका पंथ का, धर्म का, जाति का जो आपका एक उसकी जो एक पद्धति है उसका अनुसरण करते रहिए, तो वही आपको आयुर्वेद के अंतिम पद तक लेके जाएगा। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो आवश्यक है कि किसी गुरु व्यक्ति का या आचार्य व्यक्ति को हम उसके सहवास में आश्रय लेना चाहिए और उसके प्रति समर्पण होना चाहिए, और वो समर्पण 100% होना चाहिए। मतलब आज भी सर कभी भी मुझे कहेंगे कि चलो मेरे यहाँ पे प्रोग्राम है, तो मैं बाकी सब चीजें, मेरे महाविद्यालय का कामकाज, मेरे घर का कामकाज, मेरे कॉलेज में होने वाली छुट्टियां सब छोड़ के मैं सर के साथ जाता हूं। ये मेरा उनके प्रति समर्पण है। और मैं वहां पे उनकी पूरी पद्धति से उनको, क्योंकि अभी वो रनिंग 75 है, तो उनकी दवाइयां, उनके खाने पीने का ख्याल, एक मैं उनके पुत्र की तरह उनको उनके रखता हूं, और उससे मुझे ज्ञान प्राप्ति भी होती है। ये मैं मेरे अनुभव से बताता हूं। इसलिए गुरु समर्पण और आश्रय ये सबसे महत्व का है। ये मेरे और 3 गुरु, वैद्य प्रेमवती तिवारी जी, वैद्य सर देशमुख सर जी और वैद्य PT जोशी सर, जिनसे मैंने पढ़ा है और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे एक मेरे और है, लेकिन उनके साथ मेरा फोटो मुझे मिला नहीं, वो है वैद्य KC चुनेकर जी। वो उनके साथ फोटो निकालने का कभी, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था, कुछ कैमरा भी नहीं था उस समय में, तो फोटो शायद नहीं है, पर उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। द्रव्य गुण के बहुत बड़े विद्वान थे वैद्य KC चुनेकर जी। तो ऐसे समर्पण के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो होना ही चाहिए। अब मैं कुछ हमारी जो निरूपण के जो जगह है वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि धन्वंतरी देहोत्सर्ग स्थल है। 2010 साल में वैद्य अनंत बाकरे और वैद्य PT जोशी सर ने ये स्थान का खोज की, और फिर हम 2010 से अभी 11 साल हो गए, हर जनवरी में वहां पे जाते हैं और वहां पे निरूपण करते हैं और वहां पे रह के धन्वंतरी जी की आराधना करते हैं। 2010 में पहले बार गए थे तो मैं और PT जोशी सर वहां पे 1 महीना रहे थे और पूरा सुश्रुत संहिता का अध्ययन और धन्वंतरी याग आदि वहां पे किया था। ये धन्वंतरी जी की उस समय 2010 का ये फोटो है, और ऐसा रोज हम पूजा करते थे और वहां पे सुश्रुत संहिता पढ़ते थे। और मेरा अनुभव ऐसा है कि जब मैं सुश्रुत पढ़ने बैठता था तो एक मोर, मतलब पिकॉक वहां पे आके बैठता था और मेरा पूरा पठन होने तक वहां पे बैठ के सुनता था,
और जैसे पठन पूरा हो गया वो उड़ के चला जाता था। ये अनुभव है, ये कैसा अनुभव है, ये इसका मुझे मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। ये धन्वंतरी जी की मूर्ति है। धन्वंतरी देहोत्सर्ग की जगह पे ये मूर्ति रखी गई है। यहाँ पे हमें धन्वंतरी है और उनके मतलब काशीराज दिवोदास है और उनके 8 शिष्य उनके बाजू में ऊपर दिखे हैं, हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ये निरूपण होता है। अभी वहां पे रहने की सुविधा नहीं है, इसलिए वहां से 5 किलोमीटर दूर भूतनाथ नाम का एक आश्रम है, वहां पे रहते हैं और फिर पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं। ये अभी एक ही दिन के लिए जाते हैं हम वहां पे। ये वहां के कुछ दृश्य हैं। ऐसा ही एक निरूपण हमारा देहरादून में हुआ था। ये द्रोण जी का आश्रम है और ये जो खड़े हैं वो अश्वत्थामा जी ने यहाँ पे तपश्चर्या की है। ये बहुत सुंदर है। देहरादून का मूल नाम देहरा द्रोण है। देहरा मतलब आश्रम और द्रोण मतलब द्रोण का आश्रम, और उसका अपभ्रंश होके देहरादून हो गया है। तो ये मूलतः द्रोण और अश्वत्थामा की भूमि है। वे बहुत ही पॉजिटिव वेव्स वहां से मुझे प्राप्त हुए हैं। एक और जगह है महाराष्ट्र में, बारामती के नजदीक सोनेश्वर नाम का मंदिर है। वहां पे वैद्य हरीश पाटणकर जी है, वो हर साल में 2 बार वहां पे निरूपण अरेंज करते हैं। ये बहुत ही सुंदर नीरा और करा नाम की नदियों के संगम पर यह मंदिर है और बहुत अलग पद्धति से वहां पे अध्ययन होता है और बहुत अच्छी अनुभूति वहां पे मिलती है। एक रामतीर्थ नाम की एक जगह है कर्नाटक में, वहां पे अथनी के नजदीक। वहां वैद्य सौरभ कोकतनूर जो हुगली के संहिता के अध्यापक है, वो और उनका पूरा ग्रुप ये निरूपण अरेंज करते हैं। और पूरे भारतवर्ष, देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में निरूपण के लिए लोग आए हैं और सभी लोग भारतीय वेशभूषा में और सफेद रंग के ही कपड़ों में हम रहते हैं हमेशा, ताकि एकजुटता और सर्वसामान्यता रहे। कोई भी किसी भी जाति पंथ धर्म किसी वय लिंग का हो, हम सब एक है, हम भारतीय है, इसकी अनुभूति वहां पे होती है। ये निरूपण के कुछ दृश्य हैं। देखो मंदिर में मैं, ये जो मेरा नीचे का फोटो है, मैं उरुस्तंभ चिकित्सा अध्याय पढ़ा रहा था और मंदिर में पढ़ा रहा था मैं। राइट साइड में जो फोटो है वो रघु विजय तीर्थ नाम के जो उड़पी मठ के पीठाधीश है, वो निरूपण के लिए आए थे आशीर्वाद देने के लिए। उनके साथ हमारे सारे विद्यार्थियों की वार्तालाप हुई थी। कम से कम 300 लोग इस निरूपण में हमेशा रहते हैं। 3 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। ये पूरे मंदिर है राम तीर्थ का। यहाँ पे पार्वती जी का मंदिर है, पार्वती की अकेले का मंदिर, ये बहुत रेयर है, ये यहाँ पे है। ये श्री श्री रघु विजय तीर्थालु उड़पी मठ के पीठाधीश है। मैं और धर्माधिकारी सर जी, उनसे आयुर्वेद के ऊपर हमारी वार्तालाप हो रही थी। ये उसके कुछ फोटो है। ऐसे ही निरूपण जो आज के हमारे शास्त्र के, आयुर्वेद शास्त्र के बड़े बड़े जो केंद्र है, जैसे AIA, NIA, BHU जामनगर, वहां पे भी हमारे निरूपण कई बार संपन्न हुए हैं। और ये जो वहां के जो मूर्धन्य लोग हैं, उनको भी इसकी महत्ता मालूम है कि संहिता का अध्ययन कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। और एक विशेष जगह है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चरक जी का आश्रम कोटद्वारा के नजदीक चरेख नाम के ग्राम में है। उसके फोटो में दिखाने वाला हूं इसके बाद में, मेरा PPT खत्म होने के बाद। और ये जगह वैद्य जयदीप पुंडेर जी ये थे, ये हरिद्वार में रहते हैं। इन्होंने इसकी खोज की और फिर इसके ऊपर किताब लिखी थी, वो चौखम्बा ने पब्लिश की है। और अभी विश्व आयुर्वेद परिषद जो है वो इसके ऊपर कार्य कर रही है। वहां पे ये चरक जी की मूर्ति रखी गई है और वहां पे ऊपर निरूपण मेरा हुआ था। और वहां के लोगों ने बताया कि कम से कम 3000 साल के बाद यहाँ पे किसी ने चरक के ऊपर व्याख्यान दिया और वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मतलब निरूपण का फल क्या क्या हो सकता है। देखिए, निरूपण का फल यह है कि चरक जी के आश्रम में वायुक संकल्पना के ऊपर चरक हाथ में लेके 3000 साल के बाद व्याख्यान देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए, बहुत बहुत हो गया, बहुत मिल गया। तो ये उसके फल हैं। ऐसा ही और एक जगह है अश्विनी कुमार जी का मंदिर, वैद्य पांचाभाई दमनिया गुजरात के जो है, उन्होंने गांधीनगर में ये उसका निर्माण किया है और बहुत ही प्रसन्न जगह है। यहाँ पे भी मेरा निरूपण हुआ था। चक्रपाणी के ऊपर पूरा, मतलब चक्रपाणी निरूपण था वो, और 2 दिन चलता रहा और यज्ञ भी वहां पे हुआ था। मेरा अनुभव ऐसा है कि निसर्ग के सानिध्य में अगर हम आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे तो और अच्छे पद्धति से आयुर्वेद अध्ययन होता है। अगर क्लासरूम में पढ़ेंगे तो ऐसे पद्धति से होता नहीं है। इसलिए मॉडर्न टेक्निक्स साथ में लेके हम अगर निसर्ग में जाके अध्ययन करेंगे तो वो सूत्रों का अर्थ और खुलकर हमारे सामने आता है
क्योंकि आयुर्वेद इन निसर्ग से अलग नहीं है। आज तक 148 निरूपण हुए और ये एक चित्र है त्र्यंबकेश्वर में, जो बहुत ही धार्मिक क्षेत्र है, वहां पे हमारा निरूपण हुआ था, तत्व चिंतन व तत्व प्रवेश, और इसके कुछ फोटो है। ऐसे 148 निरूपण हमारे हुए हैं। और मैं अभी आपको चरक शिखर जो है उसके कुछ चित्र आपके सामने में रखने वाला हूं। वहां पे जो ग्राम है उसका नाम भी देखो, विलेज चरक ग्राम का नाम है, और वहां पे उसकी पॉपुलेशन क्या है, होम कितने हैं, 106 पॉपुलेशन है, 50 मेल और 56 फीमेल, ऐसे छोटा सा गांव है, एकदम कस्बा है। और ये हिमालय में, ये वृक्ष है वहां पे, बांज का वृक्ष है, और ये अलग बाकी के बांज के वृक्ष ऐसे नहीं रहते, पर ये बांज का वृक्ष है किसी वट वृक्ष की तरह दिखता है। वहां पे मैं ऊपर रहा था और चरक जी के साथ कुछ पल बिताए थे। बहुत ही सुंदर जगह है ये चरेक ग्राम। यहाँ पे थोड़े से मतलब शिखर के नीचे ये एक होटल भी है, वहां रहने की अच्छी व्यवस्था है, आप कभी भी जाके वहां पे रह सकते हो। अगर गूगल मैप पे आप सर्च करोगे कि चरखा देवता नाम से आपको ये सर्च कर पाओगे। ये चरेक फूड और फॉरेस्ट रिसोर्ट नाम से वहां पे मिलता है। ये मूर्ति वैद्य विनीश गुप्ता और वैद्य अनुमेहा जोशी जी और वहां के उनके जो सारे बाकी के कार्यकर्ता है, उन्होंने मिलकर ये मंदिर ऊपर शिखर पे बनाया है। ये चरक शिखर है और शिखर के ऊपर ये ऐसा वृक्ष है, और यहाँ पे जो खुदाई हुई है उसमें किसी वास्तु का वहां पे अवशेष मिले हैं, और कुछ प्राचीन खल भी मिले हैं जिसमें दवाइयां बनाई जाती है। ये मेरा लेक्चर चल रहा था 3000 या 5000 साल के बाद में वहां पे लेक्चर हुआ था। ये हिमालय में प्रथम था लेक्चर वहां पे हुआ है। ये मेरे बाजू में जो बैठे हैं वो है वैद्य विनीश गुप्ता, बहुत ही प्रयास कर रहे हैं इसके ये स्थान के महत्व बढ़ाने के लिए। ये वो जगह है, यहाँ पे जाने का मार्ग ऐसा है, ये इतना पैदल चलना पड़ता है ऊपर, 5-6 किलोमीटर ऐसा पैदल। बहुत ही सुंदर निसर्ग में रमणीय जगह है बहुत ही। वहां से ये सारे हिमालय के शिखर दिखाई देते हैं। आप सोचिए अगर वहां पे अध्ययन करने के लिए बैठेंगे तो क्या होगा, क्या मजा आएगा, और बहुत ही मजा आता है। ऐसे निसर्ग में अध्ययन करने का अलग ही एक क्या कहते हैं, अलग ही उसका प्रभाव होता है। यहाँ पे ऐसा रास्ता है ऊपर जाने के लिए, जंगल से जाता है रास्ता, और इस शिखर का नाम भी चरकान्य शिखर है। और यहाँ पे बैठ के उन्होंने कार्य किया है ऐसा बताते हैं। वहां ध्यान लगाने के लिए भी बहुत ही अलग ध्यान लगता है, बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये वहां के कुछ अवशेष, ये खल मिला है वहां पे ऊपर शिखर पे जो खुदाई हुई है उसमें। ये चरखा देवता, ये आप गूगल पे डालेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। ये विनीश गुप्ता जी, अनुमेहा जोशी और सुरेंद्र चौधरी, ये बहुत बड़े वैद्य हैं। सुरेंद्र जी ये गुरुग्राम में रहते हैं और उनका बहुत संगठन का कार्य बहुत अच्छा है। ये चरकान्य शिखर है। तो इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं। मैं मेरी शेयरिंग बंद करता हूं। तो इस प्रकार से संहिता निरूपण जो संपन्न होते हैं कई जगह, ऐसे कई धार्मिक क्षेत्र में हुए हैं। जैसे हसन में एक अच्छा क्षेत्र है, वहां पे निरूपण हुआ है। केरल में पलक्कड़ में जो आयुर्वेद का कॉलेज है, बहुत सुंदर कॉलेज है, अष्टांगम आयुर्वेद कॉलेज, वहां पे निरूपण बहुत ही अच्छा हुआ था। और केरल में प्रथम चरक निरूपण हमारा वहां पे हुआ था। केरल में चरक का अध्ययन बहुत कम होता है, वाग्भट का अध्ययन ज्यादा होता है, पर अभी लोग भी चरक की तरह आने लगे। मैं कहता हूं कि मैं वाग्भट चरक इसमें झगड़े में पड़ता नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि तीनों संहिताओं का समुचित अध्ययन होना चाहिए, कोई भी हमारे लिए आप पर भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए संहिता का अध्ययन करना ये अत्यंत आवश्यक है। और अंतिम पार्ट में अभी शुरू करता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या करना चाहिए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमें फिर से मैं वही बताऊंगा। अभी देखो, मैंने मेरे भाई के साथ में मिलके 6-7 हजार पेशेंट देखे हैं कोरोना के, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन हमें करना चाहिए और वो पब्लिक में लाना चाहिए कि देखो आयुर्वेद के इन सारे रुग्णों में हमने क्वाथ शुरू किया। अब आयुष का जो क्वाथ है, आई एम सॉरी टू से, बट आयुष का क्वाथ के जो द्रव्य है उससे कई व्यापद हमें मिले हैं, क्योंकि वो जो ऋतु था वो ग्रीष्म ऋतु था, और ग्रीष्म वर्षा ऋतु में हमारा बल सबसे कम रहता है, उष्ण तीक्ष्ण ऋतु रहते हैं। और इसमें ये उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों के क्वाथ पीने से, वो मतलब कल्पना भी क्वाथ की, तो ऐसे उष्ण तीक्ष्ण कल्पना से बहुत व्यापद हुए। इसलिए अगर आपको किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज के लिए क्वाथ बनाना है तो वो शीतवीर्य और कंठ्य, ऐसे चंदन, यष्टि मधु आदि जो द्रव्य है, इनसे क्वाथ आप कर सकते हो। और या उशीर है,
वाला, मतलब जिसको कहते हैं खस जिसको कहते हैं, ऐसे द्रव्य उसमें लाने चाहिए। हल्दी है, इसका उपयोग होना चाहिए। शुंठी अल्प मात्रा में होनी चाहिए, मरीच अल्प मात्रा में होना चाहिए, पिंपली अल्प मात्रा में उसकी, क्योंकि ये नाती सेव्य का है। कई लोगों ने आयुष के क्वाथ 2-2 महीने क्वाथ लिए हैं। आप सोचिए ये आयुर्वेद की पद्धति से जा रहा है? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये सरासर आयुर्वेद की पद्धति का नहीं है। जिसमें शुंठी, पिंपली, मरीच आदि द्रव्य है, उसकी क्वाथ कल्पना 2-2 महीने पी रहे लोग, व्यापद नहीं होगा? और वो भी ग्रीष्म ऋतु में, ये व्यापद नहीं होंगे? ये सोच ही नहीं रहे कोई। पर मेरे तरह सामान्य जो वैद्य है, जो भारतवर्ष में कई जगह है, मुझे अनुभव है, कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने आयुष क्वाथ की तरह ही अपने अपने स्तर पे क्वाथ बनाए और उसका विस्तार किया। जैसे पुणे में रसमाधव वटी का उपयोग बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही सुंदर रिजल्ट है उसके। ऐसे कई लोगों ने अपने अपने जगह पे वटी, गुटी, गुडूची का वटी बनाई, अपने अपने पद्धति से किया। उस प्रकार से अगर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए आप जो चिकित्सा करेंगे, जो द्रव्य उपयोग में लाएंगे, उसके लिए कुछ तो लॉजिकल संदर्भ संहिता में होना चाहिए। और उसको पूरा विचार करके देखिए, आयुर्वेद ये एकांतिक नहीं है कि फीवर का कोई भी रुग्ण आ जाए, उसको टैबलेट पैरासिटामोल 500 सबको एक जैसा, कोई भी लिंग हो, व्यक्ति हो, वय हो, जाति हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है हमारा। हम ऋतु का विचार करते हैं, अग्नि का विचार करते हैं, देश का विचार है, काल का विचार है, वय का है, लिंग का है, प्रकृति का है, दोषों का है, दुष्यों का है, हेतु का विचार है, ये सब करते हैं। और ये करने के लिए संहिता का अध्ययन होना चाहिए। आप संदर्भ में आखिरी बताता हूं, रुक जाता हूं। चरक संहिता विमान स्थान के 8वें अध्याय में जो दशविध परीक्षा भाव है, उसमें विकृतिता परीक्षण जो बताया है, उसका अध्ययन कीजिए। उन्होंने वहां पे किसी भी विकार का अध्ययन या विकार देखना, विकार का परीक्षण जो करना है वो कैसे करना चाहिए, उसकी पद्धति दी है। कभी समय मिलेगा आयुष दर्पण में तो सिर्फ उस सूत्र पे एक व्याख्यान देंगे। बाकी निरूपण हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो, मेरे नाम से चैनल है। सारे चैनल्स लेक्चर्स आपको निरूपण के वहां पे मिलेंगे। जहां जहां निरूपण होता है वहां वहां पे आप जुड़ सकते हो। और मेरी ये विनती है कि आप तीर्थ यात्रा करिए। आयुर्वेद के वैद्यों को तीर्थ यात्रा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तीर्थ यात्रा ये एक प्रकार की दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है। और हम जो करते हैं आयुर्वेद, मतलब जो हम रुग्ण देख के उसको व्याधि से मुक्त करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, मैं पाप कर्म नहीं कहूंगा, पर उसके मतलब रुग्ण के पाप कर्म के कारण उसको व्याधि हुआ था, और वो व्याधि स्वभाव परमवाद से ठीक होगा जब उसका पाप का प्रभाव कम होगा। पर हम चिकित्सा से उसको मुक्त करते हैं तो उसका कुछ अवशेष हमारे तरफ आता है। और उससे मुक्ति होने के लिए चरक ने 2 मार्ग बताए हैं, एक तो दान कीजिए और दूसरा तीर्थ यात्रा कीजिए। इसलिए चरक का, अगर आपको चरक के प्रति प्रेम है तो उसके ऊपर विश्वास रखिए और ये कीजिए। मेरा अनुभव है, धार्मिक क्षेत्र में जाकर अध्ययन करने से बहुत अध्ययन अच्छा होता है। कई अनसुने कहते हैं, और मेरा BMS हो गया, MD हो गया, मुझे संहिता पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा जो कहता है वो गलत है। आखिरी सांस तक संहिता मदद करेंगी रुग्ण देखने के लिए। और हर बार जब संहिता पढ़ते हैं तो हर बार कुछ नया पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिलता है। तो ये हमारे अनुभव है। मेरे गुरुजी वैद्य धर्माधिकारी सर जी अभी रनिंग 75 है, फिर भी वो कहते हैं कि मुझे चरक कुछ समझ में नहीं आया है, 1% भी समझ में नहीं आया, और अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, बहुत सामान्य है। तो मुझे यहाँ पे आयुष दर्पण ने मेरे कुछ टूटे फूटे विचार रखने का प्रयास यहाँ पे मुझे मौका दिया। कुछ शायद गलत में बताया होगा तो मुझे माफ कीजिए। शास्त्र के ऊपर व्याख्यान हुआ है मेरा, आयुष दर्पण में हुआ भी है, एक विषय लेके, आगे भी होते रहेंगे, और ये हमारा प्रयास आगे चलता जाएगा। इस आयुर्वेद के यशोगाथा नाम के सेशन में मेरे जैसे सामान्य वैद्यों को आपने सम्मानित किया, और मेरे जो अनुभव थे चरक निरूपण के, संहिता निरूपण के, वो आपके सामने रखने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सामान्य नहीं है, असामान्य कार्य आप कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया, पूरी दुनिया आप देख चुके हैं और उसके साथ आपने चरक का निरूपण किया है। रियली इट्स अमेजिंग, अद्भुत, अगम्य ऐसा कार्य आप कर रहे हैं। इस उम्र में इस प्रकार का
कार्य बिल्कुल हमारे विक्टोरियस स्टोरी के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट हमने चुनाव किया है। हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि आप सामान्य हो। आगे के कार्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आयुष दर्पण आपका ही है, आप हमेशा आते रहिए और अपना जो अनुभव है हमें बताएं। हमारा यही उद्देश्य है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में जो भी कुछ कार्य कर रहे लोग, तो उनको हम हमारे स्टूडेंट्स के सामने ला सके, प्रस्तुत कर सके। और आपका जो कार्य है, आपके जो अनुभव अभी मैंने आपको इसीलिए कहा था कि आपके कुछ अनुभव शेयर करें, ताकि हमारे बच्चे स्टूडेंट्स इससे प्रेरित हो सके। और संहिता केवल पासिंग का सब्जेक्ट है, ये जो उनके मन में होता है वो बिल्कुल गलत साबित हो और आगे संहिता के प्रति रुचि बढ़े। यही हमारा उद्देश्य है इस विक्टोरियस स्टोरीज का, जो कि लगातार इसको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। और इस सेशन का कंक्लूडन हमारे सहयोगी डॉक्टर वंदना मैडम एक करेंगी। ही बात बताना चाहूंगा आखिरी में कि Yes, sir. मेरा ये अनुभव है कि हमारे जो मतलब हमारे जो विद्यार्थी होते हैं ये प्रैक्टिस में लगने से पैसे की तरफ जाते हैं। तो मैं Yes. छोटा वैद्य हूँ, फिर भी बता दो कि आप शास्त्र के पीछे जाइए, पैसा आपके पीछे जरूर आएगा। बिल्कुल सर, पैसे के बिल्कुल पीछे सही जाओगे बात तो है। कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्र के पीछे Yes, जाइए। यस सर, शास्त्र हमेशा सही होता है, तो हमें शास्त्र का हमेशा आदर करना चाहिए। और यही बात है कि ना कि प्रैक्टिस यानी केवल पैसा कमाना नहीं है, या पढ़ना केवल डिग्री के लिए नहीं है। तो इससे हमें आत्मिक समाधान, जो कि आपने इस आत्मिक समाधान की अनुभूति खुद आप कर रहे खुद, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन लोगों में है, सारा कुछ होते हुए भी। तो कहीं ना कहीं ये जो जागतिकीकरण है, ये मॉडर्नाइजेशन है, ये हमें बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो हमें शास्त्र का प्रभाव नहीं छोड़ना है मेरे हिसाब से। मैं डॉक्टर वंदना पाठक मैडम से अनुरोध करती हूँ आभार प्रदर्शन, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। वैद्य अभिजीत सराफ जी, आप एक ऊर्जावान वैद्य हैं और आधुनिक युग के ऋषि हैं। बिना गुरु की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। आप पर अपने सदगुरु की विशेष कृपा है। आपके जो वैद्यगण जिन्होंने आपको संहिता पढ़ाई या जिनके सानिध्य में आपने पढ़े, उनकी विशेष कृपा है जो आप इतना कुछ कर पाए। और आपने तमाम हम लोगों को पूरा दर्शन आयुष दर्पण पे बैठे बैठे कराया। मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो सच में बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे। छोटे बच्चे जो प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में हैं, उनका जो रुझान है, जो रुचि है, जो संहिताओं के प्रति एक प्रेम है, वो जागृत निश्चित रूप से होगा। और इतनी बड़ी यात्रा जो हम घर बैठे कर पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी गुरु हैं, उन सबको हम लोग की तरफ से नमन, और उनकी कृपा हम सब पर भी बरसे। आयुष दर्पण पर आप ऐसे ही आते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।